اللہ تبارک و تعالی کی کرم فرمائی اور اس کی مہربانی ہے کہ آج ہم سب دارالسلفیہ پلیٹ فارم سے جڑ کر ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے اور چند اہم معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم دارالسلفیہ القلم ٹرسٹ کے قابل احترام ذمہ داران کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس پلیٹ فارم کے ذریعے امت کی ایک بڑی تعداد کو فائدہ پہنچائے۔ پروردگار اس دارالسلفیہ کے ذریعے سے امت کی صحیح عقیدے کی، صحیح منہج کی ترویج اور اشاعت میں نمایاں خدمت انجام دینے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اور آپ تمام طلبہ، طالبات، محترم حضرات و خواتین، والدین جو اس پروگرام میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ تمام سے راضی ہو جائے۔ آپ تمام کے گھروں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ آپ تمام کی زندگی کو رب سکون سے جوڑ دے۔ آپ کی زندگی میں خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ اللہ ہر بری بلا، مصیبت و آفت و پریشانی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ تمام کو اعلان کیا گیا، الحمدللہ جمعہ کا دن ہے۔ نماز جمعہ اور ظہرانے سے فارغ ہونے کے بعد من کرتا ہے کہ آرام کریں، من کرتا ہے کہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو بستر کے حوالے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، حضرات و خواتین، طلبہ اور طالبات کو الحمدللہ اس پروگرام میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کو بڑھانے، اپنے ایمان کو بڑھانے، اپنے دل کی تربیت کرنے اور اپنے ضمیر کو زندہ کرنے اور اپنی دینی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ تمام یہاں تشریف لائے ہیں، یہ واقعی قابل تحسین ہے اور قابل ستائش و تعریف ہے۔ محترم حضرات و خواتین، طلبہ اور طالبات، غور سے سنیں۔ آج ہمارا موضوع ہے ڈیجیٹل دنیا، کیا یہ رحمت ہے یا امتحان ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں جیسے جیسے زمانہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اسی قدر نت نئے ایجادات، نئے نئے ایجادات، انکشافات، نئی سہولتیں، آرام و آرائش کے سامان ہم انسانوں کو میسر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والی صدی پچھلی صدی سے سہولت کے اعتبار سے زیادہ عمدہ نظر آتی ہے۔ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے سہولیات اور ترقی کے اعتبار سے زیادہ کامیاب نظر آتا ہے۔ ہر آنے والی نسل پچھلی نسلوں کے مقابل میں نت نئی چیزوں کا انکشاف کرنے میں کامیاب نظر آتی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے دھماکے کا دور ہے، یہ ڈیجیٹل دنیا کے دھماکے کا دور ہے۔ یہاں پر سوشل میڈیا نے پوری طرح سے اپنا جال پھیلا دیا ہے، اپنا نیٹ ورک بچھا دیا ہے، اپنی سہولیات دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہر کوئی سوشل میڈیا کا محتاج بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا کا ضرورت مند بنا بیٹھا ہے۔ یوں کہیے گا تو غلط نہ ہوگا، یوں کہیے گا غلط نہ ہوگا، یہ سوشل میڈیا، یہ ڈیجیٹل دنیا ہماری زندگی کا وہ حصہ اور وہ پارٹ بن گئی ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ گفتگو ہماری سوشل میڈیا سے الگ کرنے کے حوالے سے نہیں ہو سکتی ہے،
یہ اس دور کا تقاضا ہے، یہ زمانے کی ضرورت ہے۔ انسانی ضروریات اس سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا، ان سے راہ مفر اختیار کرنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ خاص کر نئی نسل آج سوشل میڈیا کے شکنجے میں، سوشل میڈیا کے جال میں پھنس چکی ہے۔ ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل دنیا، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ ٹویٹر، یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب اور جو دیگر مختلف سائٹس ہیں، تو کیا یہ ہمارے حق میں رحمت بن کے ثابت ہو رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے میرے اور آپ کے ایمان، میرے اور آپ کے دل، میرے اور آپ کی سوچ، میرے اور آپ کے دماغ کا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں؟ محترم حضرات و خواتین، سوشل میڈیا ایک نعمت ہے، سوشل میڈیا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو آسائش تمہیں مل رہی ہے، جو نعمت تمہیں مل رہی ہے، جو آسانی اور سہولت تمہیں مل رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے دوستو۔ آج سوشل میڈیا کے فائدے ہم جانتے ہیں، اس سوشل میڈیا سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھ کر وقت کی بچت کر سکتے ہیں آپ، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، خیر کا تعارف کرا سکتے ہیں، مذہب اسلام کا انٹروڈکشن کرا سکتے ہیں۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے فاصلوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے دوریاں مٹائی جا سکتی ہیں، اسی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے رشتوں کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ بے آباد رشتے آباد ہوتے ہیں، بے آباد گھرانے، ویران گھرانے اس سوشل میڈیا سے آباد ہوتے ہیں، کوئی مشرق میں تو کوئی مغرب میں، کوئی مشرق میں تو کوئی مغرب میں۔ لیکن سوشل میڈیا نے دونوں رشتوں کو جوڑے رکھا ہے، بنائے رکھا ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر سکتے، ایک دوسرے کا حال معلوم کر سکتے، ایک دوسرے کی سبحان اللہ خبر لے سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس سوشل میڈیا سے آپ اپنی بھلائی کا دائرہ وسیع سے وسیع کر سکتے ہیں۔ آپ اس سوشل میڈیا سے تعاون، بھلائی اور مدد کا دائرہ وسیع سے کشادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی ہندوستان میں بیٹھا ہے، افریقہ کے مجبور انسان کی مدد کی جا سکتی ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، انڈونیشیا کے لاچار انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اس حدیث پہ ہم اور آپ عمل کر سکتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جاپان میں بسنے والا ایک بے بس مومن، جاپان میں بسنے والا ایک محتاج مومن، جاپان میں بسنے والا ایک مظلوم و مقہور مومن، آپ ہندوستان کی سرزمین میں بیٹھ کر اس کی خبر لے سکتے ہیں۔ مظلوم ہے، آپ مدد کر سکتے ہیں، مجبور ہے، اس کی مجبوری کو یہاں بیٹھ کے دور کر سکتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا سکتے ہیں آپ کو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ اکبر! کبھی ہم نے سوچا؟ واقعی نیکی کا میدان کشادہ کر سکتے، بھلائی کی سوچ عام کر سکتے، جذبہ انسانیت کا سبق دے سکتے، رحم و کرم کے اسباق عام کر سکتے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ یہ رحمت ہے دوستو، یہ رحمت ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے، آپ دیکھیے گا
रहमत की दलील ये है, आप हिंदुस्तान और बैरून हिंद के मुख्तलिफ इलाकों में हैं, सोशल मीडिया ने इस मुबारक मजलिस में मुझे और आपको जोड़ के रखा है। अल्लाह अकबर। दीन की बातें सुनने के लिए यहां जमा हुए हैं। और ये दारुस्सलफिया और अल कलम ट्रस्ट के जरिए से जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, जो खैरात को आम करने की कोशिश हो रही है, ये इस बात की दलील है कि डिजिटल दुनिया रहमत है, डिजिटल दुनिया अल्लाह की नियमत है। इस डिजिटल दुनिया से कितने ऐसे बिदअत में मुब्तला राह सुन्नत को इख्तियार कर लिए, कितने मुशरिक मुवहिद बन गए, कितने जाहिल अहले इल्म की फहरिस्त में शामिल हो गए, कितने सियाहकार पारसा बन गए, कितने सख्त दिल नरम मिजाज के हामिल बन गए। सोशल मीडिया रहमत है दोस्तों। आज इल्म के दायरे बहुत वसी हैं। ऐसे उलमा और फुजला जिन तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती, मशरिक व मगरिब की दूरी है, डिजिटल दुनिया ने इस दूरी को खत्म कर दिया। किबार बड़े बड़े उलमा से इल्म हासिल करने का सुनहरा मौका ये डिजिटल दुनिया फराहम करती है। कितनी बड़ी बात। खासकर लॉकडाउन के बाद से अल्लाह हम सब की हालत पर रहम करम का मामला फरमाए। अल्लाह ताला हर बुरी बला से बचाए, हर अचानक आने वाली आफत से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको सेहत व आफियत के साथ रखे। लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे। और सुबहान अल्लाह, जानते आप, इस डिजिटल दुनिया के जरिए हमारे बच्चे कुरान मजीद को सुबहान अल्लाह उन्होंने अपने सीनों में बसाया। कुरान पढ़ना नहीं आता था, कुरान बेहतरीन अंदाज से पढ़ने वाले बन गए। सूरतें याद न थी, नमाज में खड़े होते, कितने बड़े अहबाब, कितनी बड़ी खवातीन, छोटी छोटी सूरतें भी उन्हें याद नहीं। ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर उनके सीने कुरान से मामूर हो गए, उनके दिल कुरान से आबाद हो गए, उनकी सोच कुरानी सोच बन गई। जहां नाच गानों की आवाजें गूंजती थी, ऐसे घरों में कुरान की आवाजें गूंजने लगी। डिजिटल दुनिया की बरकत है, डिजिटल दुनिया की रहमत है, डिजिटल दुनिया की नेमत है ये। आज घरों से किताब और सुन्नत की सदाएं और आवाजें बुलंद हो रही हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है ना दोस्तों। बड़ी फिक्र रहती है हमारे बाज बड़ों को, मौलाना हम कहीं जाके कुरान पढ़ नहीं सकते, या तो तबीयत साथ नहीं देती, या हालात साथ नहीं देते, या हमारी बस्ती में कोई ऐसे नहीं है जो हमें कुरान पढ़ा सके, जो हमें सही अकीदा दे सके, जो हमें सुबहान अल्लाह इस्लाम के हवाले से बुनियादी मालूमात फराहम कर सके। ऐसा कोई नहीं है मौलाना हमारे पास। डिजिटल दुनिया ने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, डिजिटल दुनिया ने आपके मुश्किल को आसान कर दिया, डिजिटल दुनिया ने आपको कुरान से करीब कर दिया, डिजिटल दुनिया ने आपको किताब और सुन्नत का हामिल बना दिया। अभी हम रिपोर्ट लेते हैं अपने बाज दोस्तों अहबाब से, मुताल्लिकीन से, वो कहते हैं मौलाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से आज मेरा बच्चा कई पारों का हाफिज बन चुका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से मेरी अहलिया, मेरी रफीक हयात सही ढंग से कुरान पढ़ने लगी हैं। कितनी बड़ी नियामत है।
कभी सोचा हमने? वल्लाही बहुत बड़ी नेमत है ये, बहुत बड़ी नेमत है ये। कुरान से करीब, दीन से करीब, इल्म से करीब, तौहीद से करीब, किताब और सुन्नत से करीब, सही उलमा की रहबरी, सही उलमा का इल्म, सही उलमा की सुबहान अल्लाह तड़प हमें हासिल होती है। ये डिजिटल दुनिया, ये रहमत है और ये बरकत है। बाज रिश्ते होते आप सामने हाजिर होकर माफी नहीं मांग सकते। दो भाइयों में इख्तिलाफ, भाई बहन में इख्तिलाफ, फूफी से इख्तिलाफ, खाला से इख्तिलाफ, मामू से इख्तिलाफ, रिश्तों में बड़े दरार पाए जाते। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दरार को खत्म कीजिएगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फासिलों को मिटाइएगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सुबहान अल्लाह अपने रिश्तों को जोड़िएगा। लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलाकिन्नल वासिला अल्लज़ी इज़ा कुतिअत रहिमुहु वसलहा। कितनी प्यारी तालीम दी हमारे नबी ने। रिश्तों को जोड़ने वाला वो नहीं जो बदले में रिश्तों को जोड़ता है, हकीकत में रिश्तों को जोड़ने वाला वो होता है दार जब रिश्तेदार उससे अपना दामन छुड़ा ले, उन्हें वो जोड़ने की कोशिश करे। टूटे रिश्तों को जोड़ना, यह हकीकत में रिश्तों को जोड़ना है। जो दूर भागे उन्हें करीब कर दें, जो जिहालत से मुकाबला करें बुर्दुबारी से उनके साथ पेश आए, जो बुरा सुलूक करे उनके साथ अच्छा सुलूक करें, जो बद्दुआ दे दुआओं से नवाजें, जो रास्ते में कांटे बिछाएं उनको दुआए रहमत दें, जो रास्ते में रुकावट पैदा करें उनको दुआए हिदायत दें। ये सब आप सोशल मीडिया से कर सकते हैं। आप मसलन एक मिसाल मैं आपको देता हूं, भाई से बात नहीं करते आप, सामने ईगो का मसला होता है, मैं क्यों आगे बढ़कर मुलाकात करूं, मैं क्यों आगे बढ़कर सलाम पेश करूं, मैं क्यों आगे बढ़कर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूं। गलती उन्होंने की ना और वो समझते हैं गलती आपने की ना, दोनों कभी जुड़ते नहीं। फोन सुबहान अल्लाह आसान जरिया है। फोन किया आपने, सामने नहीं है, और फोन के जरिए से बेआबाद रिश्ते को आबाद कर सकते, फोन के जरिए से फासिलों को मिटा सकते, फोन के जरिए से आप रिश्तों को जोड़ सकते, फोन के जरिए से आप सामने वाले के अंदर पाई जाने वाली बुराई की इस्लाह कर सकते, आप अपनी तड़प को जाहिर कर सकते आप। तो दोस्तों बहुत आसान होता है, ऐसा करके देखिएगा, वल्लाही ईमान की लज्जत मिलेगी हमें। सोशल मीडिया आज से इस जो है काम के लिए इस्तेमाल कीजिए आप। हम इंशाल्लाह रिश्तों को जोड़ेंगे, हम बेदीन को दीनदार बनाएंगे, हम जाहिल को आलिम बनाएंगे, हम कुरान से दूर इंसान को कुरान से करीब करेंगे, बिदात में मुब्तला को सुन्नत का आदी बनाएंगे, शिर्क के रास्ते को इख्तियार करने वाला तौहीद के रास्ते पे लगाएंगे, सख्त दिल को नरम दिल बनाएंगे, मसाजिद से दूर इंसान को मस्जिदों से करीब करेंगे, इंसानियत से महरूम इंसान को इंसानियत का सबक देंगे। हम वक्त को बर्बाद करने वालों को वक्त का सही इस्तेमाल करना सिखाएंगे। ये अगर आपने ठान लिया ना, वल्लाही ये नेमत है, वल्लाही ये रहमत है। ये डिजिटल दुनिया रहमत कब है, मेरे और आपका जो है वो यूज बताएगा, मेरे और आपका इस्तेमाल बताएगा, हमारी हिस्ट्री बताएगी, हमारी हिस्ट्री बताएगी। ये मोबाइल, ये डिजिटल दुनिया रहमत है या आफत है, रहमत है या अजाब है, रहमत है या इम्तिहान है, कौन बताएगा। आप अपनी जो है लिस्ट देखिए, आप यूट्यूब हिस्ट्री देखिए, गूगल हिस्ट्री देखिए, अपने मोबाइल के सुबहान अल्लाह हिस्ट्री देखिए, वो हिस्ट्री बताएगी ये रहमत है या इम्तिहान है।
अब आइएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल मीडिया के सिलसिले में डिजिटल दुनिया के बारे में आपने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बातें सुनी। अब वल्लाही ये बहुत बड़ी नेमत हमें लग रही है। लोगों की सहूलत के हिसाब से मर्द हजरात, खवातीन, नौजवान, बच्चे, बूढ़े हजरात सब जमा होते हैं और उलमा को सुनते हैं, अपने ईमान को ताजा करते हैं। अब यहां जितने अहबाब माशाअल्लाह मौजूद हैं, क्या आसान है सबको जोड़ना एक जगह पर? उतना आसान नहीं है। डिजिटल दुनिया ने हमें खैर से जोड़ के रखा है। डिजिटल दुनिया ने हमें ऐसी मजलिसों से जोड़ के रखा है। अब आइए हम बात करते हैं इम्तिहान के सिलसिले में। ये सरापा रहमत नहीं है दोस्तों, ये सरापा नेमत नहीं है दोस्तों। किसी के हक में नेमत तो किसी के हक में जहमत, किसी के हक में रहमत तो किसी के हक में आजाब, किसी के हक में ये ईमान को बढ़ाने का जरिया तो किसी के ईमान को तबाह करने का जरिया, किसी की सोच को निखारने का जरिया, किसी की सोच को बिगाड़ने का जरिया ये डिजिटल दुनिया है। आज अगर पूरी अमानतदारी से मैं कहूं, आज पूरी अमानतदारी से अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो डिजिटल दुनिया का गलत इस्तेमाल करती है। डिजिटल दुनिया का गलत इस्तेमाल करने वाली एक बड़ी तादाद है दोस्तों। इसमें शर भी है, खैर भी है, इसमें हक भी है, बातिल भी है, इसमें भलाई भी है, बुराई भी है, इसमें रहमत का पैगाम भी है, जहमत के रास्ते भी हैं, इसमें हलाल रास्ते भी हैं, हराम रास्ते भी हैं। जन्नत का रास्ता दिखाने वाली ये दुनिया है, जहन्नम का रास्ता बताने वाली दुनिया भी है ये। आज बताइएगा, घर घर का प्रॉब्लम क्या है, घर घर का मसला क्या है? बच्चों से लेकर बड़ों तक, छोटों से लेकर बड़ों तक क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? यही डिजिटल दुनिया को लेकर परेशान है। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान, असातिज़ा अपने स्टूडेंट्स को लेकर परेशान, शौहर बीवी के आपसी ताल्लुकात इस डिजिटल दुनिया को लेकर परेशान, नौजवान नौजवान इस डिजिटल दुनिया को लेकर हैरान, परेशान, सरगर्दां और मुतहय्यर नजर आते हैं। क्या बात है, इसमें खैर है, हम साहिब खैर बनने तैयार नहीं। क्या बात है, इसके अंदर भलाई है, हम भलाई के आदी ना हुए। क्या बात है, इसके अंदर इल्म हासिल करने के रास्ते हैं, उन इल्मी रास्तों पे हमने अपने आप को लगाया नहीं। क्या बात है, इसके जरिए से हम रिश्तों को जोड़ सकते हैं, हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं। क्या बात है, इसके जरिए से अपने दिल को निखार सकते हैं, दिल बेआबाद और वैरान और मुर्दा बने बैठे हैं। आज इंसानियत मिटती जा रही है। डिजिटल दुनिया के जरिए उसके गलत इस्तेमाल ने आज इंसानियत को खत्म कर दिया। हमदर्दी नहीं है आज। बिलकते हुए इंसान को देखकर भी दिल तड़पता नहीं। बिलकते हुए इंसान को देखकर भी दिल तड़पता नहीं, दिल रोता नहीं। दिल बहुत सख्त हो गए हैं, दिल बहुत सख्त हो गए हैं। इकबाल की जबानी कहूं, इकबाल की जबानी कहूं, है दिल के लिए मौत मिशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मिशीनों की हुकूमत, एहसास मुरूवत को कुचल देते हैं आलात।
اس ڈیجیٹل دنیا نے دلوں سے نرمی کو چھین لیا، اس ڈیجیٹل دنیا نے دلوں سے انسانیت کو چھین لیا، اس سوشل میڈیا نے دلوں سے ہمدردی کو چھین لیا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں امانت داری سے، آج مخلص لوگ بہت کم ہیں دوستو، ریاکار لوگوں کی کوئی کمی نہیں، آج شو آف کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ ڈیجیٹل دنیا نے ہماری نیتوں پہ حملہ کیا۔ کتنے مخلص جو کل تک بڑے مخلص تھے آج بڑے ریاکار بن گئے۔ دلوں پہ حملہ کیا اس نے، نیتوں پہ حملہ کیا اس نے۔ آج ہو رہا ہے نا پریکٹیکل لائف میں، اخلاص جا رہا ہے، اور دلوں کے اندر پائی جانے والی ہمدردی جا رہی ہے۔ میں نے کہا نا، ہر کسی کو فکر اس بات کی ہے کہ اس کے چاہنے والے، اس کو دیکھنے والے، اس کی تعریف کرنے والے بڑھیں بڑھیں۔ ارے آپ کے اس ویڈیو لینے سے ایک انسان کی عزت جا رہی ہے، آپ آپ کے اس ویڈیو لینے سے سامنے والا جو بلک رہا ہے اس کی موت ہو رہی ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں۔ آنکھوں پہ پردہ، کانوں پہ پردہ، عقل و دماغ پہ پردہ، دلوں پہ پردہ لگ چکا ہے دوستوں۔ اور آگے بڑھ کر آج اسی ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے سے بعض اللہ کے بندے غلط عقیدے کو عام کر رہے ہیں، غلط میسیجز کو عام کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا امانت ہے، یہ موبائل ایک امانت ہے، اور اس موبائل اور سسٹم کے ذریعے جس سائٹ میں بھی آپ داخل ہوں گے وہ امانت ہے۔ آپ کے ذریعے سے کوئی ایسا میسیج عام نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا عقیدہ بگڑ جائے، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، خاندان بکھر جائے، خاندان ٹوٹ جائے، دل منتشر ہو جائے، لوگ بدزن ہو جائیں، لوگوں کے اخلاق پہ حملہ کر دیں آپ۔ ایسا ہرگز نہیں، آج کر رہے ہیں لوگ، کوئی احساس ہی نہیں۔ بھائی شیئر مت کیجئے نا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہمارے حبیب نے نہیں کہا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ کاپی پیسٹ کرنا آج مصیبت بن گئی ہے، کاپی پیسٹ کرنا ایک مصیبت ہے آج۔ ارے اللہ کے بندو، ہم میسیج مکمل پڑھتے بھی نہیں، میسیج کو فارورڈ کر دیتے، اور بعد میں پتا چلتا آپ کے میسیج فارورڈ کرنے سے کسی کی عزت لٹ گئی، کوئی خاندان برباد ہو گیا۔ بعد میں سوری بولنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کفا بالمرء کذبا، صحیح مسلم کی حدیث سے، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، ہر سنی بات کو نقل کر دے، ہر سنی بات کو عام کر دے۔ آج سوشل میڈیا میں یہی ہوتا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر سبحان اللہ کچھ تحقیق کیے ہم فوراً میسج کو فارورڈ کر دیتے۔ اگر تحقیق بھی سامنے آئے، اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ اگر میں عبداللہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر خرابی ہے، میں پورے گروپ میں عبداللہ کو ذلیل کر رہا ہوں، میں عبداللہ کا سر جھکا رہا ہوں، میں عبداللہ کو سبحان اللہ اس کی غلطی سب کے سامنے اچھال رہا ہوں، بندہ شرم سے جو ہے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اصلاح کا یہ طریقہ ہے دوستو۔ ارے اللہ، ہمارے نبی تو ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی صحابی غلطی کرتے تو اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے یوں بیان فرماتے، ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ وہ غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا اور اس کا نام آپ لوگوں کے سامنے ذکر نہ فرماتے، اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا یہ غلطی ہے اور اس سے باز آنا چاہیے۔ یہ ہمارے حبیب کی سنت ہے دوستو، یہ ہمارے حبیب کی سنت ہے۔
इसे हमें इख्तियार करना चाहिए। आज हो रहा है ना, आज आज इंसानियत मिट रही है, आज इखलास जा रहा है, आज लोग गलत मैसेजेस को आम कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर एक बात मैं कहूं, गलत ना होगा, डिजिटल दुनिया ने हमारे औकात को बर्बाद कर दिया, हमारी सलाहियतों को जाये कर दिया, हमारे अज़ाइम को बर्बाद कर दिया, हमारे फ्यूचर को तबाह कर दिया, हमारी सलाहियतों को जमीन में दफन कर दिया। आप देख लीजिएगा, घंटे घंटे मोबाइल में मसरूफ, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे मोबाइल में मसरूफ, क्या पाया क्या खोया? खोया बहुत, पाया बहुत कम। खोया बहुत, पाया बहुत कम। क्या खोया? अखलाक खोया, तकवा खोया, अपने ईमान को खो दिया, अपने अज़ाइम को खो दिया, अपने फ्यूचर को खो दिया। ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है। हमारी समाअतें डिजिटल दुनिया से कुरान सुनने को तैयार नहीं, हमारी आंखें डिजिटल दुनिया में पाई जाने वाली भलाइयों को देखने के लिए तैयार नहीं। समाअतें गुनाहों से महजूज हो रही हैं, निगाहें नाफरमानी और रब की नाफरमानी से राजी हैं दोस्तों। औकात बर्बाद, औकात बर्बाद, औकात बर्बाद। वक्त को हम क्या कहते हैं? वक्त ये सोना है, सोने से बढ़ के है वो। आज बर्बाद करने वाला कौन है? आज यही जो है सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया। आप देख लीजिएगा, आप जिसे ये इस मोबाइल की लत लग जाए, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया की लत लग जाए, उसकी पूरी सलाहियतें बर्बाद हो जाती। और इसी डिजिटल दुनिया से आज हराम रास्ते बहुत आम हो रहे हैं। आज आप देख लीजिएगा, जो कल तक हलाल रोजी के पाबंद थे, आज हराम कमाई में मुब्तला हो रहे हैं, रातों रात लखपति बन रहे हैं, रातों रात एक लखपति गरीब और कंगाल बन रहा है। ऐसे ऐसे साइट्स में दाखिल होते हमारे नौजवान, कमाने का चक्कर, कमाने का चक्कर। 100 रुपये इन्वेस्ट करते, 1000 रुपये इन्वेस्ट करते, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते, वहां से 2 मिनट 5 मिनट में डबल रकम मिलती। 10,000 इन्वेस्ट किया तो 20,000 आए, 20,000 इन्वेस्ट किया तो 40,000 आए, 40,000 इन्वेस्ट किया तो 1 लाख आए, 1 लाख इन्वेस्ट किया तो पूरा बर्बाद हो गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। ऐसा होता है ना आज, हराम दरवाजे बहुत आम हो रहे हैं आज, और हराम ताल्लुकात भी बहुत आम हो रहे हैं। नौजवानों के लिए बड़ा मसला है ये। आज बहुत सारे नौजवानों की इज्जत व आबरू महफूज ना रही। बहुत सारे नौजवान अपनी इज्जत की हिफाजत करने में नाकाम। जानते हैं क्यों? सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने उनकी तन्हाइयों को तबाह कर दिया है। हैंड प्रैक्टिस करते हैं, गलत आदतों में मुलविस हैं, गलत ताल्लुकात में मुब्तला हैं, जवानी बर्बाद, जवानी तबाह करते हुए अपना फ्यूचर एक क्वेश्चन मार्क बना दिए हैं। इसीलिए दोस्तों, अब मेरे और आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरे और आपकी जिम्मेदारी यह है, हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। डिजिटल दुनिया से अपनी दुनिया को संवारेंगे और अपनी आखिरत को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। इस नई नस्ल को याद रखना दोस्तों, नई नस्ल को आप सोशल मीडिया से अलग नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल जरूर सिखा सकते हैं आप। आज मां बाप मायूस हो जाते, मौलाना मेरा बच्चा हाथ से निकल गया। मायूस मत हो जाइए। आप मायूस होंगे तो आपके बच्चे को कोई संभाल नहीं सकता। आप मायूस होंगे, आपके बच्चे को कोई बना नहीं सकता। आप हिम्मत रखिएगा। उस दलदल से, उस गंदगी से, उस कीचड़ से आप बचा सकते हैं इंशाअल्लाह। एक तरफ कीचड़ है,
दूसरी तरफ सुबहान अल्लाह बेहतरीन बाग है, उस बाग में दीनदारी है, उस बाग में अखलाक है, उस बाग में इंसानियत है, उस बाग में इल्म के रास्ते हैं और इल्म के फूल हैं। अब मेरे और आपकी जिम्मेदारी हमारे बच्चों को बाग के हवाले करना या कीचड़ के हवाले करना। अगर कीचड़ में है, निकालिए, बच्चों को ईमान की नदी से नहलाइए, उनके दिल को आप जो है संवारिए, संवारने का सामान फराहम कीजिए और अपने बच्चों को ऐसे मुबारक दुनिया में मसरूफ रखिए। आप, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे जो माशाल्लाह प्लेटफॉर्म है ना, माशाल्लाह, जहां कुरान पर, इस्लामिक स्टडीज पर और आपके बच्चों की आखिरत पर तवज्जो देते हैं ना, बहुत बड़ी नियामत है, याद रखना ये। अगर इनसे जोड़ के रखेंगे ना, आपके बच्चे कीचड़ से निकल कर कहां जाएंगे? उस बाग में जाएंगे जिस बाग में इल्म के फूल हैं, जिस बाग में अखलाक की मोतियां हैं, जिस बाग में सुबहान अल्लाह दीन की, सुबहान अल्लाह दीन का दरख्त वहां मौजूद है। वहां से एक एक सुबहान अल्लाह मोती और फूल हासिल करते जाएंगे और अपना फ्यूचर और अपनी दुनिया और अपनी आखिरत बनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस पर तवज्जो देंगे ना बिइज़्निल्लाह। बहरहाल कहने का मकसूद यही है, मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, काबिल एहतराम जिम्मेदारान, इस प्लेटफॉर्म से आपको इसलिए जोड़ा गया है ताकि यहाँ पर एक जो मुबारक सिलसिला शुरू हुआ है कुरान के हवाले से, इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, आप हम तरबिया के हवाले से, हम आपसे ये अपील करते हैं खासकर तलबा और तालिबात से कि आप मेहनत से पढ़िएगा। वल्लाही ये गोल्डन चांस है। माँ बाप का हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा कीजिए। आज के दौर में कितने माँ बाप लापरवाह हैं, बच्चे कहाँ जाते, क्या बात करते, किससे ताल्लुकात रखते, मोबाइल कहाँ तक इस्तेमाल करते, कुछ भी उनको परवाह नहीं। अल्लाह ने आपको ऐसे माँ बाप अता किया जो ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको जोड़ के रखते। वल्लाही नियामत है ये माँ बाप, वल्लाही नियामत है ये माँ बाप। इनकी कदर कर लेना, आप शुक्रिया अदा करना आप उनका। और दूसरी बात, अल्लाह से तौफीक का भी मुतालबा करो। कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल है, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। तो मेहनत भी कीजिएगा, अल्लाह से तौफीक का भी मुतालबा कीजिएगा। और इसी तरह से एक बात हम अर्ज करेंगे, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, बच्चे बच्चे होते हैं, आप उनको छुट्टी दिलाएंगे बहुत खुश हो जाएंगे, नहीं, बच्चों के फ्यूचर को बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आपने दाखिल करवा दिया, मसलन आप माशाल्लाह इस हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप रोजाना हफ्ते में जो 3 दिन कुरान की क्लास होती है, आप बस 1 दिन 2 दिन भेजते हैं। आप बच्चे ने कोई बहाना बनाया तो आपने कबूल कर लिया, नहीं, आप हिम्मत दिलाना बच्चों को, आप मोटिवेट करना। आप सुभान अल्लाह, बच्चों के 24 घंटे आपके पास हैं, ये अमानत है, ये आपकी जिम्मेदारी। आप पाबंदी से क्लास भेजना, आप बाकायदा मुताबा करना, पढ़ते नहीं पढ़ते वो, आप उनका एग्जाम लेना, उनके बारे में पूछना, अगर सुस्ती बरतते हैं तो आप उनको मोटिवेट करना, उनको उभारना। सख्ती से मत कीजिए आप, सख्ती ये नई नस्ल बर्दाश्त नहीं करती है। हमदर्दी से बताइए, आप अपनी फिक्र को वहां बताइए। और बच्चों को सपोर्ट बहुत जरूरी है। माशाल्लाह हमारी मुअल्लिमात मेहनत कर रही हैं, असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चों पर पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर ताली एक हाथ से बचती नहीं, जैसे मशहूर मसल है, असातिज़ा के साथ, मुअल्लिमात के साथ आपका ताउन भी जरूरी है। आप भी बाकायदा जो है यानी उस पर खास तवज्जो दें। और एक बात हम आपको बता दें, जो मंथली जो शीट जो है आपको हम फराहम करते हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह जो है आपकी तवज्जो होनी चाहिए, है कि नहीं? मंथली जो वर्कशीट है, तो उस पर भी आपकी तवज्जो होनी चाहिए और आप उस पर मुकम्मल तवज्जो फरमाइएगा। हम तलबा और तालिबात से भी गुजारिश करेंगे, और इसी तरह से जो हमारे मुहतरम जिम्मेदारान हैं, वालिदैन हैं, वो वर्कशीट जो है बाकायदा आपके बच्चों के रिवाइज करवाने के हवाले से जो आपके पास हम पेश कर रहे हैं, तो उस पर भी आप तवज्जो दीजिएगा इंशाअल्लाह। और एडमिशन अभी भी जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, एडमिशन जो है अभी भी जारी है।
आप लोग अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते, और आपके जो रिश्तेदार हैं, जानने वाले अहबाब हैं, उनको भी आप जोड़ सकते हैं। आपने अगर जोड़ दिया इंशाअल्लाह, उसके जरिए से वो भी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे, और जो गलत बातें हैं वो गलत बातें खत्म होंगी इंशाअल्लाह। ये कुछ बातें रहीं मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, और इसी तरह से हमारे काबिल एहतिराम यानी वालिदैन और सरपरस्त हजरात, आपसे हम यही अपील करते हैं, ये डिजिटल दुनिया रहमत भी है, इम्तिहान भी है, बस इस्तेमाल बताएगा। अल्लाह का खौफ कीजिए, वक्त की कदर कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ज़रूर फ्यूचर आपका रोशन होगा। अल्लाह ताला हम तमाम से राज़ी हो जाए, हम तमाम के अमाल, अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल फरमाए, इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, इस दारुस्सलफिया प्लेटफॉर्म की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और इस तरह जो भी अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म मैदान में सरगर्म अमल हैं, किताब और सुन्नत को आम करना चाहते हैं, अल्लाह ताला सबों की हिफाजत फरमाए। और यहाँ जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मुस्तकबिल को बना दे, उनके इल्म में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आपके माँ बाप से राज़ी हो जाए, अल्लाह आपके घरों में बरकतों के फ़ैसले फरमाए, रहमतों के फ़ैसले फरमाए। यहाँ पर जो दारुस्सलफिया के हवाले से जो बात है, वो आप जो है, जो फीडबैक जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाज वालिदैन ने, बच्चों ने, वो आप देखिएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर वही है ना फीडबैक। अगर कोई इश्कार और डाउट हो तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा, जो माशाल्लाह जो है, बस ये क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ा खैर दे। इसका मकसद क्या है, ये जो जो फीडबैक बता रहे हैं माशाल्लाह, यानी मेहनत हो रही है, काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद जो है इंशाल्लाह हम भी आगे बढ़ेंगे, और आपको भी ताउन करना है, सपोर्ट देना है इंशाल्लाह। अगर किसी के जहन में कोई इश्काल डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक मरतबा देख लीजिए, जो यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देख लीजिएगा। Ta'ala give us tawfiq to say this adhkar. Adhkar is the most important thing. Alhamdulillah. After the adhkar, we have aqidah. In the aqidah, believe. In the previous class, we have started with La ilaha illallah. The three principles of our deen, our religion of Islam. The first is Islam, second is Iman, the third is Ihsan. Do you know these are the three principles? Okay, who can say the principles of this deen without looking? Come on. Al Islam, الإسلام huh? الإيمان Huh? الإحسان. MashaAllah, Barakallah Feek, Allahumma barik. So these are the three most important things. And these three things are three principles. Usul, al-thalatha, three principles of our deen. So the first principle is Islam, second is principle is Iman, and the third principle is Ihsan. So what is Islam, Iman, and Ihsan? It's coming in detail.
تو میٹنگ جاری رکھیں یا ختم کر دیں محترمہ تکریم حفظہ اللہ؟ دیکھیے گا جو بھی واٹس ایپ لنک اور تفصیلات دے رہے ہیں، الحمدللہ آپ اسے چاہیں تو جو ہے اپنے گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ جزا خیر دے آپ تمام کو، اللہ آپ تمام سے راضی ہو جائے، آپ تمام کے اوقات میں برکت دے۔ بارک اللہ فیکم جمیعا و شکرا۔ بہرحال بس یہی آخری گزارش ہے، طلباء اور طالبات سے بھی اپیل کرتے ہیں محنت کیجئے گا، خوب آگے بڑھیے، اور ہم پیرنٹس سے، خاص کر جو مائیں ہیں ان سے اپیل کریں گے وہ اس پہ توجہ دیں۔ بڑی نعمت ہے، ڈیجیٹل دنیا یہ رحمت ہے، یہ آپ اپنے پریکٹیکل لائف سے ثابت کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یہ اپنے بچوں کے فیوچر کو بنانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔